screen to screen what Dhanush did, no doubts. So far in his career, she can write it in one of her best movies. ओके जितना हाइप था मूवी का जितना हाइप क्रिएट See, I don't know because see, right from his debut movie and watching Dhanush, he did his debut movie called Tullu Elame, then the next movie was Kadal Kondain. The mix of both the things, the story was taken from that, the character is also the same, but Anand Ralai treated it with a different way, then he has finished the movie in a different way. And it was being said that ये Ranjana 2 का Nothing, part it has nothing to do with Ranjana. Nothing. Only he becomes the Delhi Union College ka president. That only for that people thought it is Ranjana. It has nothing to do with Ranjana. Okay. And music about the music. Music, it is good. The background score of A.R. Rahman is good. They have included one Tamil song completely. No need of any translation on that. Then there is one Jigar Danda song is there, which is very common. Apart from the directography and cinematography, what do you have? Yeah, everything is good. They have depicted the Delhi very well. Good. The Varanasi scenes are good. It is a okay kind of. Dhanush has been doing it. It is his breakfast, lunch, and dinner. So he has done it the same over here. The runtime is very long. I mean 3 hours. Yeah, the 3 hours, it is only boring in the last when both the people, Dhanush and Kirti, die. I think that is becoming boring in the end. Last, they should have trimmed it by 7 minutes. Okay. And lastly कितने stars देंगे? 3 stars. Thank you so Thank much. you. कैसी लगी तेरे? बहुत अच्छी मूवी थी. धनुष का कैरेक्टर वाज रियली गुड, कृति का कैरेक्टर वाज रियली गुड, एंड ओवरऑल द मूवी प्लेज विथ योर माइंड एंड साइकोलॉजी, बट इट वाज रियली गुड एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज रियली गुड थ्रू आउट द मूवी. एंड धनुष एंड कृति की केमिस्ट्री मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट स्टिल इट वाज रियली कन्विंसिंग एंड थ्रू आउट मूवी बहुत अच्छी थी. स्टोरी टेलिंग वाज बेस्ट. When you get to the interval, you like the movie कि आगे और कुछ अच्छा होगा और कुछ अच्छा, but और नहीं, बहुत और अच्छा हो जाता है. And बहुत अच्छी लगी मुझे. Throughout this year, this movie was really good. The hype that was being created. I mean. The hype was Was it worth it? the hype was like कि ये मूवी कुछ अलग होगी, but मूवी कुछ अलग थी. Hype अलग थी, मूवी अलग थी. So one time watch तो नहीं है, बार बार देखने का मन करेगा आपका. Apart from that, the story का जो runtime है, it's 3 hours. हाँ, नहीं बोर तो नहीं होगा. नहीं 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 नहीं. It's lengthy, but it's catchy in the first 30 minutes. So you will catch attention of. So it's really amazing. There is something different. I mean, Dhanush तो heartbroken. हाँ. But Kriti is also heartbroken. So what's the intensity of both? The intensity is really good. So you will watch it and then you will get to know about it. But it's really amazing. You have to watch this. It's a 5 out of 4, 4 out of 5. Solid rating. And apart from that, the music of the movie. The music was really good. The A.R. Rahman's composure and Arijit Singh on. So it has to be good. The cinematography and director. The cinematography was good and the direction was really good. The storytelling was really good throughout the movie. So you have to watch it. And lastly, कितने stars देंगे 5? Out of 5, solid 4. How would you recommend the audience to watch it? अगर आपने सैयारा ये सब देखी तो उससे तो ये तो देखनी चाहिए फिर आपको. ऐसे ही मतलब कुछ अलग देखने को मिलेगा. जो एक्सपेक्ट करके आ रहे हो उससे तो बहुत ही डिफरेंट है मूवी. बहुत अच्छी Do मूवी. you think ये सैयारा के इतने successful cross कर पाएगी? क्रॉस करनी चाहिए क्योंकि मैंने देखी है. बहुत अच्छी मूवी है, होनी तो चाहिए. Thank you so much. वेलकम. कैसी लगी तेरे इसमें? काफ़ी अच्छी. किसकी एक्टिंग अच्छी लगी? धनुष की या किसकी? मुझे सभी की एक्टिंग अच्छी लगी एक्चुअली. दोनों का ही दिल टूटा है, दिखाया गया है. जी जी जी. केमिस्ट्री दोनों की कैसी है, धनुष की और कृति की? मुझे दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी. दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत पसंद करने लगते हैं. जैसे फिल्म स्टार्टिंग होती है, उनकी स्टोरी और एंडिंग जो होती है, काफ़ी दोनों को एक दूसरे को चाहने लगते हैं और पसंद भी करने लगते हैं एक्चुअली. मूवी का रन टाइम है 3 घंटा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बोरियत सी हो. नहीं, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा. नहीं, और गानों की अगर बात गाने काफ़ी अच्छे. A.R. रहमान, अरिजीत सिंह जी जी हैं, बिल्कुल. कैसा लगा सुनकर? गाने भी काफ़ी अच्छे लगे, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी. तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मूवी में कुछ बोरिंग है. मुझे सैयारा आई है, बीच में एक दीवानी की डिमांड आई है, बहुत लंबी मूवीज आई हैं, उसमें आपको लगता है तेरे इश्क में कहीं आगे बढ़ पाएगी? ये थोड़ी कंपटीशन की बात है. ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है. जो जैसी पब्लिक हो, जैसे लोगों को जो पसंद आता है उसके ऊपर डिपेंड करती है. बाकी आगे कितनी जाएगी, बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी. ये मैं नहीं कह सकता एक्चुअली. बाकी मुझे पसंद आई काफ़ी. कितने स्टार देंगे? 5 स्टार. 5 किसके लिए? सभी के लिए. जो एक किसी के लिए नहीं. जी जी थैंक यू सर. मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी पिक्चर. थोड़ी डल मूवी है अच्छा क्योंकि इतना अच्छा डायरेक्टर है आनंद. उसकी बहुत सारी पिक्चर अच्छी अच्छी आई है. जी.
तो उसमें हमको निराश कर दिया पिक्चर में, अच्छा क्योंकि स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रही है ऐसा, अच्छा। और डायरेक्शन भी वीक है ऐसा। कहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगा, मतलब क्यों आपको ऐसा लगता ये है? वही तेरे इसके में जो होता है वो प्यार जो होता है दो साइड से होता है, वन साइड स्टोरी, वन साइड लव है, जी वो भी समझ में नहीं आ रहा। वो दूसरे से शादी भी करती है, बच्चा भी करता है, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या उसका मीनिंगलेस है। जी उसको ब्लड कैंसर है, फिर भी डिलीवरी होती है, सब पॉसिबल कैसा होता है, जी ऐसे बहुत है सीन। जी। रांझना 1 का सीक्वल जैसा आ रही है ये मूवी, ऐसा बताया जा रहा था, तो आपको कहीं ना कहीं ये मूवी देख के लगा कि रांझना का रेफरेंस है मूवी? ये जो धनुष जो था ना उसमें, धनुष का इस पर कोई एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं एक्टिंग में, इसके लिए वो अच्छा नहीं लगा हमको। तो खाली कृति सेनन ओके है, ठीक है, कृति की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है एक्चुअली। इतना अच्छा AR रहमान का म्यूजिक होना चाहिए है, इतने अच्छे आर्टिस्ट है AR रहमान, और अरिजीत सिंह का भी अरिजीत सिंह सिंगर है, फिर भी गाने वगैरह है, फिर भी पिक्चर टोटली फ्लॉप है। धनुष और कृति को एक साथ देखकर उनकी केमिस्ट्री कितनी नहीं जम रही है, नहीं, धनुष के चेहरे पे कोई हाव भाव ही नहीं है एक्टिंग का, लगता ही नहीं है हीरो रफ है टफ है, किसी में भी जम नहीं रहा। तो जितना हाइप किया गया था रिलीज के पहले, आपको लगता है उतना वर्थ इट है मूवी ये देखना? पिक्चर कोई नहीं देखे तो भी अच्छा है, मैं तो ऑडियंस को बोल रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं है मूवी। कितने स्टार मेरा देंगे? एक तो सबसे बड़ी बात है 3 घंटे की मूवी है, हाँ एडिटिंग जरूरी थी। 2 घंटे की मूवी होती है तो अच्छे भी लगती है, जी। तो 3 घंटे की मूवी कोई देखता नहीं आजकल। कितने स्टार्स देंगे 5 में से लास्ट? एक ही स्टार। थैंक यू सो मच। हेलो सर, कैसी लगी आपको देरेश? मुझे थोड़ी मायूसी हुई, इतनी पसंद नहीं आई, अच्छा क्योंकि आनंद राय इन्होंने पहले रांझना मूवी बनाई थी, और हैप्पी भाग जाएगी, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, तन्नो वेट्स मनु रिटर्न्स, तो उनसे बहुत अपेक्षाएं थी। कहीं ना कहीं मुझे हिमांशु और नीरज का जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड लगी, और स्क्रीन प्ले भी बहुत ही ज़्यादा इतना बिखरा हुआ है कम्प्लीटली, फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी स्लो पेस्ड, एंड देन सेकेंड हाफ में लगता है कि शायद इट विल पिक अप, बट वो इतना कंफ्यूजिंग स्क्रीन प्ले है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। AR रहमान का म्यूज़िक अच्छा है, बट और अच्छा हो सकता था जितना उनसे अपेक्षाएं थी। 1-2 गाने अच्छे हैं बहुत, अरिजीत सिंह के गाने, हाँ। बाकी जो मूवी में जो इंटेंस लव स्टोरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं देखने को मिली। जितना हाइप क्रिएट किया गया था मूवी रिलीज होने के पहले, आपको लगता है देखने के बाद उतना वर्थ इट है? नहीं, क्योंकि हम लोग 3-4 लोग जो हमेशा मूवीज़ रिव्यू करते हैं, हम लोग एक दूसरे से वी वे क्वेश्चनिंग कि मे बी बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि शायद किसी को पसंद आ जाए, बट धनुष हालांकि बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं और बहुत कम बोल के भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, तो उनका भी रोल मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो एक्ट्रेस है कृति सेनन, वो उनका बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट रोल था, शी ड्रिंक्स एंड स्मोक्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा ऑडियंस को वो पेयर भी थोड़ी सी मिसमैच लगेगी, उनकी जो केमिस्ट्री है। उसके साथ साथ कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, कुछ सीन्स बहुत ही रैंडम है विच कुड हैव बीन एडिटेड, सो एडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज की डेट में कौन 3 घंटे की मूवी देखता है? वी हैव बीन गिविंग फीडबैक टू ऑल द डायरेक्टर्स, बट कि 2-2.25 से ज़्यादा की मूवी मत रखिए। अगर मूवी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है तो ही वो 2.25-3 घंटे या 3 घंटे की होनी चाहिए, तो वहाँ पे बहुत मायूसी हुई। तो हेमल और प्रकाश की एडिटिंग शार्प नहीं थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है तुषार और विशाल की, डायरेक्शन भी और अच्छा हो सकता था आनंद राय का, स्टोरी और स्क्रीन पे बहुत स्कैटर्ड है जिसमें इनका AR रहमान का म्यूज़िक अच्छा है, बट ओवरऑल आई वाज काइंड ऑफ डिसइल्यूजन्ड एंड डिसग्रंटल्ड विद द ओवरऑल मूवी। लास्टली कितने स्टार्स देंगे? आई विल गो विद 2 stars विद ए हैवी हार्ट, क्योंकि इससे पहले रांझना मूवी देखी है और शमिता मूवी में बहुत अच्छा रोल था धनुष का, तो उस तरह से थोड़ी मायूसी हुई। वन लास्टिंग, रांझना का कहीं आपको लगा कि रेफरेंस है बिकॉज इट वाज बीइंग सेड कि वैसा पार्ट 2 या सीक्वल वो लोगों को इसलिए लगा कि 1-sided लव ऐसे होगा, बट आगे जाके स्क्रीन पे इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि वो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने किसी से बात की, उन्होंने बोला कि तमिल मूवी कोई आई थी 2002 में, वो 2 तमिल मूवीज़ फर्स्ट हाफ में, पहला हाफ वो मूवी का है, दूसरा जिसमें वो एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हैं। तो अगर आपने ऐसे किया है, दे शुड बी इनोवेशन, दे शुड बी क्रिएटिविटी। बॉलीवुड को कुछ देखना पड़ेगा, रीमेक 2 मूवीज़ को क्लब करके बोल रहे हैं मूवी बना दी, तो कुछ समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। कैसी लगी तेरे? काफ़ी बोरिंग, पुअर, पथेटिक, हॉरिबल, बकवास और वाहियात।
डिसअपॉइंटिंग? मतलब मूवी का हाइप बहुत ज़्यादा था रिलीज़ के पहले, एंड रिलीज़ के बाद क्या डिसअपॉइंटिंग आपको सबसे ज़्यादा लगा? देखिए ट्रेलर बहुत अच्छा था। ट्रेलर Exactly. से एक्सपेक्टेशन मेरी काफ़ी हाई थी। मुझे लग रहा था एक जो जिल्टेड लवर, एक जो टूटी हुई लव स्टोरी होती है वो देखने को मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी बात होगी इस पूरी फिल्म में और इम्पैक्ट छोड़ेगी। कभी कभी कुछ फिल्में अगर आपने वो महसूस नहीं किया होता किसी का दर्द, तब भी आप पे वो इम्पैक्ट छोड़ देती है। यहाँ पर वैसा नहीं है। बहुत डायरेक्ट फिल्म है, फोर्स्ड इमोशन है, फोर्स्ड ड्रामा है। 2 घंटे 40-45 मिनट का स्क्रीन टाइम है। अगर आप इसको बहुत ऑनेस्टली पूछोगे तो कम से कम 30-35 मिनट ये फिल्म छोटी हो सकती थी। हर सीन ड्रैग्ड है। आनंद एल राय जी की डायरेक्टोग्राफी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले उन्होंने हमें कई हिट मूवीज़ दी। देखिए आनंद एल राय जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो जब मैं अगर फिल्म के बारे में इतना हार्श और नेगेटिव ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही इज़ अ फैंटेस्टिक फिल्म मेकर। और उससे भी ज़्यादा मैं उनसे मिला हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान भी है, ठीक है। पर अब ऐसा है कि यहाँ पे जो उन्होंने मेरे सामने प्रेजेंट किया, मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। बॉक्स ऑफिस पे कितना भी कमाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे उनसे कोई पर्सनल संबंध नहीं है, तो मैं अपना बहुत एक ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ। आनंद एल राय जी, आप प्लीज़ समझिए कि आपकी जो राइटिंग टीम है, जो आपकी एक्टर्स की भी टीम है, आपको उसमें थोड़ा सा एक ब्रीदर डालने की ज़रूरत है। सेम राइटिंग टीम है आपकी, सेम सेट ऑफ एक्टर्स को आप लेके चल रहे हो, सेम टाइप की एक थोड़ी सी रिवॉल्विंग थीम के अराउंड फिल्में बना रहे हो, कब तक, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे धनुष का भी जो कैरेक्टर है वो बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड है, कुछ उनकी पुरानी ही तमिल फिल्मों से इंस्पायर्ड है। आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो धनुष का कैरेक्टर जो रहना तेरे दिल में के मैडी से बहुत वो लग रहा है उसमें। उनका जो दोस्त है वो ब्रिजेश हिरजी से बहुत इंस्पायर्ड लग रहा है। उनके जो फादर है प्रकाश राज, वो कहीं ना कहीं रहना है तेरे दिल में कि अनुपम खेर की उनमें झलक दिख रही है। एंड में जो है एक सीक्वेंस आता है सॉफ्ट टाइप का, जहाँ पे कैरेक्टर्स का एंड हो रहा है, वहाँ पे एक उनका प्यारा सा मोमेंट वाला एक सॉफ्ट म्यूजिकल पीस आ रहा है। वो आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर कोई भी फिल्मों का दीवाना होगा भारत में, वो देख के बता देगा कि ये रॉकस्टार फिल्म है। जो एंड में रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी का एक सीक्वेंस है, हाँ, जहाँ पे वो दोनों कह रहे हैं कि अब अपन कहीं और मिलेंगे, वो जो उनका सब खत्म होने के बाद जो एक आता है उसकी झलक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे या तो बहुत ही लेथार्जिक लेजी राइटिंग है, यहाँ पे या तो आपने ऑडियंस की सेंसिबिलिटी को बहुत ही हल्के में ले लिया है, या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ लिया है कि वी कैन कवर अप दीज थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, एंड आप जो हो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए हो, क्योंकि ऑडियंस ने आपकी ये चीज़ पकड़ ली है। कृति की एक्टिंग के बारे में क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं उनका ग्राफ इसके बाद बढ़ जाएगा, एंड शी हैव डिड रियली वेल। देखिए कृति जो है, कृति ने अपना सालों साल ग्राफ ऐसे ही किया है। इनिशियली जब वो आई थी, वो उनमें एक एमेचोरिशनेस, न्यू कमर वो दिख रहा था, एक फील दे रही थी वो। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कृति ने अपने लिए इंडस्ट्री में एक जगह बना ली है। कृति ने अपनी इंडस्ट्री में जो जगह बनाई है वो प्योरली अपने परफॉर्मेंस, हार्डवर्क की वजह से बनाई है। इस तेरे इश्क में फिल्म की मुझे सबसे पेनफुल बात जो लग रही है वो उसकी स्टोरी नहीं है, बट ये पेनफुल बात मुझे लग रही है कृति सनोन के लिए, क्योंकि शायद से उन्होंने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, सबसे हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस दिया है। पर फिल्म ही इतनी वीक है, फिल्म इतनी डिसअपॉइंटिंग है कि वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस को शायद से नोटिस ज़्यादा नहीं किया जाएगा। वो गिने चुने जिन्होंने फिल्म देखी है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो ही समझ पाएंगे। बट ओवरऑल जो है, जब ऑडियंस ही इग्नोर करने वाली फिल्म को, तो कहीं ना कहीं आप भी उतना नोटिस नहीं हो। रंजना का रेफरेंस कहीं लगा? क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेलर रंजना का रेफरेंस बस यही लगा कि आनंद एल राय जो है, उन्होंने कलर येलो प्रोडक्शन ब्रांड के अंडर जो है अपनी टीम सेट जो कर लिया, उनको सोच लिया है कि किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म अपनी हर फिल्म में घुसेड़ा जाए। इस फिल्म में अगर मैं बताऊं, ज़ीशान अयूब जो है एक्टर, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जिन्होंने स्क्रीन के 10-12 मिनट ले लिए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अननेसेसरी फोर्स ड्रामा, पथेटिक उनका जो अवतार है, जो कैरेक्टर है, पंडित वो कहीं से लगते नहीं है ना। उनका अगर आप ऑफ स्क्रीन जो उनकी आइडियोलॉजी वो समझोगे, उनके कमेंट्स देखोगे, जो उनका बिहेवियर देखोगे, वो पंडित अगर आप उससे दिखा रहे हो, तो समवन लाइक मी तो विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट इट। तो ज़ीशान अयूब जो है सुपर बैड चॉइस थे, और मतलब मेरे ख्याल से वो सीन ही नहीं होना चाहिए था, वो कैरेक्टर ही नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपको, एक एक कैरेक्टर घुसा के, एक एक सीन डाल के ऐसे कोशिश करेगी कि वहाँ पे आप पे एक इमोशनल ड्रामेटिक हथौड़ा मारा जाए, बट वो बैकफायर कर रहा है। कितने स्टार्स देंगे 5 में से? 0.5 स्टार। 0.5 स्टार। 0.5। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी लगी तेरे इश्क में? तेरे इश्क में मैंने बहुत पुराना एक गाना सुना था,
तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, नागिन पिक्चर में से। तो वो नागिन पिक्चर थी और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी नागिन थी, जो मेरे को डसी, मेरा खून चूसी और दूध वाले के साथ भाग गई। तो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी है, पिक्चर की स्टोरी अच्छी है, पिक्चर का स्क्रीन प्ले अच्छा है, बट जिन जिनका कटा है ना, मैं उनको रिकमेंड करूँगा ये पिक्चर देखो, तो आपको प्राउड फील होगा। हाँ, 4 दिन पहले ही देखो ना, यहाँ काटी और 2 दिन में मेरा काट के भाग गई। 4 दिन पहले गले पे काटी है और 2 दिन में मेरा काट के उठ गई, तो ऐसा थोड़ी होता है। पिक्चर बाकी अच्छी है। धनुष की एक्टिंग और कृति की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस मूवी के बाद। जी जी, दोनों का जो ग्राफ है ना वो इतना बढ़ गया कि मेरा ग्राफ गिर गया नीचे, क्योंकि जब इन लोगों को देख रहा था ना तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी, जब मैं उसके साथ झाड़ियों में, खेतों में, बर्फ़ की वादियों में रंगीन रातें बिताया करता था, ओयो में अपनी यादें सजाया करता था, तो मुझे पूरी की पूरी उसी की याद आ रही थी। तो उन दोनों को देखकर मुझे अपने वाले की याद आ रही थी। मेरे में बुराई क्या थी मैडम, ये बताओ ना। मेरे को खाली शक था उसके ऊपर कि उसका जो चक्कर है ना वो पेपर वाली के साथ चल रहा है, लेकिन उसका जो मेन चक्कर था वो दूध वाली के साथ था। तो मेरा श्राप है उसको कि वो जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, वो जो दूध वाला है ना उसकी भैंस दूध ही ना दे, उसकी भैंसों को पोलियो हो जाए, लकवा मार जाए ऐसे। आनंद राय जी की डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है सर का, उन्होंने मेरी दुखती रथ पे हाथ रख दिया है, मेरी लाइफ जर्नी बता दी है। तो मैं कैसा है ना, वो पायलट रहता है स्टार्टिंग में, कॉलेज एकदम राउडी उसका वो कैरेक्टर है धनुष का, वो मारता है, तोड़ता है, और बाद में जब धोखा मिलता है ना तो जाके पायलट बन जाता। तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो सुलभ शौचालय के मालिक की बेटी थी और मैं वहाँ पे सुलभ शौचालय साफ़ करता था। तो वो साफ़ करते करते मेरे को उससे प्यार हुआ था, और जब मैं उसके बाप के पास रिश्ता लेके गया तो कुत्ते की तरह मार के भगा दिया मेरे को, क्योंकि मैं नौकर था ना। तो बाद में मैं मीडिया में आया और जब मैं उसके पास गया तब तक वो दूध वाले के साथ भाग गई थी। तो लाइफ जर्नी पूरी मेरी बताई है, और इसमें भी धनुष पायलट बन जाता है। तो पिक्चर बहुत अच्छी है। इसके पहले भी लोग कह रहे थे कि ये रांझना का सीक्वल जैसा है, कुछ रेफरेंसेस आने वाले मूवी में, तो देखकर है 2-3 रेफरेंस है, वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। बस ये बोलूँगा कि आओ पिक्चर देखो, आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे, और अगर आपका कटा है तो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। रन टाइम मूवी का बहुत लंबा है, 3 घंटा, तो कहीं बोरियत लगी या ऐसा लगा कि बहुत स्ट्रेच कर दिया गया है? देखो, अगर ये मूवी 6 घंटा भी रहती ना तो मैं बैठ के नहीं, पूरा लेट के देखता पिक्चर को, क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी पिक्चर में देखते हो तो आपको 3 घंटे भी नहीं मालूम पड़ते। जब मैं 8 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओयो में बिता सकता था, तो 3 घंटे यहाँ क्या थे, आप मेरे को ये बताओ ना। तो ये 3 घंटे भी कम लग रहे थे मुझे। मैं बोल रहा था पिक्चर क्यों ख़त्म हो गई, बाद में टॉर्चमैन आके मेरे को बोलता है कुत्ते के बच्चे उड़ जा, पिक्चर ख़त्म हो गई। म्यूज़िक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूज़िक बहुत अच्छा है। AR रहमान सर का जब म्यूज़िक बजता है ना तो मुझे वो 2 कॉर्नर याद आ जाते हैं, जब मैं 3 से 6 गेटी गैलेक्सी में पिक्चर देखता था बैठ के मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो जब हम लोग लुका छुपी करते थे ना तो म्यूज़िक बजने लगता था, तो ऐसा म्यूज़िक था AR रहमान सर का। और अरिजीत सिंह के गाने के बारे में क्या उस बंदे की जब आवाज़ आती है ना तो ऐसा लगता है कि उस बेवफा की याद आ रही है। तो बस यही बोलूँगा, अल्ताफ़ राजा का एक शेर, उस बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मर हम गए। तो तू जहाँ भी हो ना, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कभी खुश ना रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने मुझे धोखा दे दी। ये 4 दिन से लोग पूछ रहे काय का निशान है, काय का निशान है। ये तेरा निशान नहीं है, ये मच्छर काटा है मेरे गले पे। मूवी जो है अभी आपको लगता है क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि अभी बीच में बहुत लव स्टोरी रहती है, सैयारा आई थी, एक दीवाने की दीवानियत थी, उसको क्रॉस करके कहीं उतनी हिट हो पाएगी आपको? लुक, ही वॉज द ऑफिशियल फादर ऑफ सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत एंड मैनी अदर्स। अगर आप धनुष की बात करते हो तो धनुष का जो ऑरा है ना वो अलग है। धनुष क्या है, तमिल इंडस्ट्री से पूछो, रजनीकांत का एक्स दामाद है वो भी किसी को छोड़ा है, और मेरी वाली ने मेरे को भी छोड़ी है। तो जो धनुष का ऑरा है ना वो अलग लेवल का है, और यहाँ पर उसको शायद अभी भी जो कोविड के बच्चे वो ना पहचाने, जो लॉकडाउन के बाद पैदा हुए, लेकिन मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, उनकी मैंने बहुत सारी फिल्में देख रखी है पहले से। मजाक की बात से हट के धनुष एक अलग ही बंदा है, और पूरा का पूरा दरिंदा है, जो अपने आप में ही मज़ा आ जाता है देख के। तो फिल्म कमाएगी यहाँ पे नो डाउट। आज कम से कम 10 से 15 करोड़ की ओपनिंग लेने वाला है ये। कितने स्टार्स देंगे फिल्म को? स्टार नहीं दूंगा मैं, आनंद एल राय मुझे जहाँ भी मिलेंगे ना उनके पैर चूम लूँगा, उनको किस दे दूँगा,
बोलेंगे तो सब कुछ दे दूंगा, इतना अच्छा डायरेक्शन था फिल्म का। थैंक यू सो मच। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, ज़मीन दे दूंगा, आसमान दे दूंगा, आगे वाला शमशान और पीछे का कब्रिस्तान दे दूंगा। इतनी अच्छी लगी है मेरे को पिक्चर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया है, 5 स्टार। नहीं, बहुत अच्छी थी, देखना चाहिए था सबको। बहुत अच्छी फुल जितने हैं 5 के 5। हाँ, बहुत अच्छी थी। अच्छी थी स्टोरी, बहुत एवरीथिंग सब बहुत अच्छा था। स्टोरी अच्छी है, लव रिलेटेड है। 5 फैबुलस, एक नंबर पिक्चर थी, फुल पैसा वसूल, मस्त। स्टोरी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से नरेट किया स्टोरी को, और लास्ट का एंडिंग जो है वो थोड़ा इमोशनल है। बहुत 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 कड़क। धनुष एक नंबर। दीवानियस की भी बात थी एकदम फाड़। स्टार 10 आउट ऑफ 10। बहुत 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 फर्स्ट शो ही हाउसफुल गया हम लोग का। एक नंबर मूवी थी बहुत। दोनों का एक्टिंग जो था वो फर्स्ट क्लास था, एक नंबर। वो फैन पसंद कर रहे हैं, एक्चुअली करना भी चाहिए, वो मूवी है उस लायक। स्टोरी एक नंबर है, बोले तो 10 to 10। सीन मेरे को पसंद आया एक्चुअली, जो कीर्ति सेनन की जब मेहंदी रहती है उस टाइम पे, जब धनुष के पिता जो डेथ कर जाते हैं, उसके बाद में जो होता है, देखने लायक सीन है। इंटरवल के बाद बिल्कुल पूरी स्टोरी हटके है, लाइक जो बॉलीवुड की जो मूवियाँ बनती हैं उनसे वो टोटल डिफरेंट है। टोटल 10 of 10। 10 of 10। जी, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, म्यूजिक भी गुड, वो भी काफ़ी अच्छी। हाँ, मतलब बाकी मूवी से मुझे बेटर ही लगा, अच्छा ही लगा। और बाकी मूवी भी अच्छी हैं, ये भी अच्छी है, मैं यही कहना चाहूँगा। रोल इसमें सभी का अच्छा लगा। अच्छा ऐसा, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगा किसी का रोल ऐसा थोड़ा कम रहा है, ऐसा नहीं होगी, सभी रोल अच्छे रहे। सॉरी, 5 स्टार। अच्छी थी बहुत, मतलब बहुत अच्छी। मतलब आप कैरेक्टर के बारे में देखें तो धनुष का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, एंड प्रीति का कैरेक्टर वाज क्वाइट गुड। केमिस्ट्री मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट इट वाज रियली 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 अमेजिंग। मैंने 3 घंटा देखा, एंड 3 घंटे में ऐसे मुझे बिल्कुल बोर नहीं हुआ, क्योंकि कैची थी मूवी। फर्स्ट 30 मिनट्स में मूवी बहुत कैची हो गई थी, एंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से कैच किया। कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा था। द मूवी वाज रियली इंटेंस। आपको लगेगा अल्फा मेल का कैरेक्टर है, बट द स्टोरी हर जगह तुम्हें पकड़ लेगी कि यहाँ पे ये होना चाहिए था। ओ, वैसे थोड़ा थ्रिल भी है, थोड़ा और रांझना का रेफरेंस वाज रियली अमेजिंग। 2 रांझना के रेफरेंस थे, वो बहुत अमेजिंग से थे। माई रिएक्शन इज़ रियली गुड। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट इट वॉज रियली गुड, रियली गुड। The music was damn good. The music was obviously it's A.R. Rahman's composing and Arijit Singh on singing. So it has to be good. So it is really good. The cinematography and directography it's really good. The storytelling is really really catchy. So the first 30 minutes you will just look into the screen, not here, not there. You'll just look into the screen. The direction was really good. I have to give him a really good appreciation for that. So it was really different. The expectations was different, and the hype created was different, and the movie in real was different. So it's really amazing, really great work. From 5, I'll give it a solid 4. 4. It was good. It is same Dhanush first 2 movies. They have mixed it up. Anand Rai has made 2 movies. Dhanush did one debut movie called Tullu the Ilamed and Kadal Gonden. Both the storyline he has mixed and give it in a new flavor. That's it. Fans are loving it. What your reaction on that? Not, I'm used to Dhanush for last 20-22 years. It is okay. How many stars you will give it? 3.